Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Uh, I am here with you with another lesson. Students, this is subject English for class 9, and we are studying exercises of lesson number 10 and 11. And today's topic is not topic, but today's topics are adverb and adjective clauses. Students, I have taught you these two topics, and today we will see the exercises about the topic given in your lesson number 10 and 11. So moving towards our lesson, but before going to the topic, students, I hope that after completing the lessons, the students will be able to understand, identify, and explain the clauses. Students, you have studied clauses with two lessons in previous lessons. I have given two lectures on this topic, and I hope that this is the third lecture about these clauses, and I hope that after this lesson your understanding will be more clear. So that's why I have set the goal, and the goal is you will be able to understand, identify, and explain the clauses, differentiate adjective and adverb clauses. यानी आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इनको पहचान सकेंगे और इनको एक्सप्लेन कर सकेंगे क्लॉजेस को, और एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज में आप इनमें फ़र्क को जान सकेंगे. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉजेस इन द राइटिंग्स. आप अपनी राइटिंग में डिफरेंट क्लॉजेस को आप इस्तेमाल कर सकेंगे. अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर, आप इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे. एंड आइडेंटिफाई एरर्स, और सेंटेंसेस में जो गलतियां होंगी आप उनको आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे. तो स्टूडेंट्स, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन that after completing the lesson you will be able to do uh, all these activities that I have narrated, told in front of you. So moving towards lesson, so I in the index of the lesson is grammar exercise of lesson number 10, and in this exercise we will study exercise A, B, C, D and E. And in lesson number 11 we will study exercise B, C, D, F and G, and these exercises of these two lessons are about adjective and adverb clauses. So moving towards topic, students, this is a relative pronoun. This relative pronoun is very much relevant to adjective clause. This exercise has been given in your lesson number 10. So all of you know that what pronoun is. Students, you know that pronoun is a word placed in the placed in place of noun, written in place of noun. यानी वो वर्ड जो हम नाउन की जगह पे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. और स्टूडेंट्स, कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं कि जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. यानी वो जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, यो, यूर, यू, ये इस तरह के प्रोनाउन हैं. इनसे थोड़े से डिफरेंट हैं, जो क्वेश्चन वर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और ऐसा प्रोनाउन जो किसी अननोन पर्सन के लिए भी हम उनको इस्तेमाल करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अ रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस आइडिया. ये क्या करते हैं? दीज प्रोनाउंस जॉइंस आइडिया. ये दो आइडियाज को जोड़ते हैं. इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं. ये वर्ड्स क्या हैं? हु, विच, दैट, होम, हुज. ये वर्ड्स जो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन किए हैं, ये यूज होते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस में भी. तो स्टूडेंट्स, ये
इसकी एग्जांपल्स देखें, द people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction. This sentence has been taken from your lesson. The people who who here students is a relative pronoun. Who is joining two ideas या subject or object, subject and predicate. This is subject and this is predicate and this is a joining word and this is the relative pronoun. Okay, in the next sentence, the people who are addicted to drugs undergo may serious problems. Here another word and this is who. This is also a relative pronoun. अब हम देखते हैं कि इनका adjective clause से link क्या है. An adjective clause is a group of words which does the work of an adjective. You know this earlier. I have taught to you earlier. आप मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और आप इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि adjective clause क्या होता है. एक group of words है, वो group of words adjective का काम देता है. यानी एक वर्ड एडजेक्टिव लगाने से हमारा काम नहीं बनता, तो हम पूरा adjective clause लगा देते हैं. It usually begins with a relative pronoun such as who, whom, that, which, whose. अब ये जो words हैं, आप पता चला आपको कि क्यों important है. मैंने कल भी आपको definitions में adjective clause की definitions में ये चीज़ बताई थी. आज फिर इसको रिवाइज किया क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज में शामिल है. तो ये अब नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखें, यूज हु, होम, दैट, विच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब ये इन लेसन्स में हमने इन सेंटेंसेस में हमने इनका इस्तेमाल किया है. ये आपके सामने एक्सरसाइज है, सॉल्व्ड एक्सरसाइज है, इसको आप देखें. दीज आर द कलर पेंसिल्स. ये वो कलर पेंसिल्स हैं विच आई वांट टू बाय, जो मैं खरीदना चाहता था. अब ये सारे का सारा ये विच जो है ये रेलेवेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इस पूरे सेंटेंस विच आई वांट टू बाय ये इसको बनाता है एडजेक्टिव क्लॉज. नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट देखें. आई नो द वुमन हुज चाइल्ड वाज बोर्न. अब आई नो द वुमन, मैं उस औरत को जानता हूँ हुज चाइल्ड वाज बोर्न. एक और चीज़ स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड कर लें कि एडजेक्टिव दरअसल होता क्या है. एडजेक्टिव अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी वो नाउन या प्रोनाउन को उसको क्वालिफाई करता है या इसके मतलब को मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें देता है. आई नो द वुमेन या दीज आर द पेंसिल, ये ही वो पेंसिलें हैं विच आई वांट टू बाय, जिनको मैं खरीदना चाहता था. अब विच आई वांट टू बाय ये इसके मतलब पेंसिल्स के मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है. और ये हुज चाइल्ड वाज हर्ट, ये जिसका बच्चा जख्मी था, ये इस वुमेन के मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो ये जो वर्ड्स हैं एक वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये पूरे का पूरा ये क्लॉज बनता है. तो जो अंडरलाइन पहले से अंडरलाइंड हैं ये स्टूडेंट्स प्रोनाउन है. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है. तो द ओल्ड लेडी whom we met in the shop was Amna's grandmother. अब विच होम जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा बनता है, whom we met in the shop, right? whom we met in the shop, ये इसमें एडजेक्टिव क्लॉज बनता है. This is the girl who stood first in the class. यही वो लड़की है जो क्लास में खड़ी पहली पोजीशन पे आई थी. अब who stood first in the class, ये जो क्लास में पहली पोजीशन पर आई थी. अब ये सारे का सारा सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज है. who इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है. ये मैंने पहले आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज. तो ये सारे के सारे पहले मैंने रिलेटिव प्रोनाउन अंडरलाइन किए हुए थे. ये नेक्स्ट आगे हाईलाइट करके इनको मैंने बता दिया कि कौन सा इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है. शाजिया लाइक्स द कैंडीज. शाजिया कैंडीज को पसंद करती है. दैट हर फादर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, जो उसके अब्बू मार्केट से लेकर आए थे. दैट इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये पूरे का पूरा सेंटेंस जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आगे है आंसर अनवर whom no one listened
टू वाज राइट। अब होम नो वन लिसन टू, जिसको कोई भी, जिसकी कोई नहीं सुनता था बेचारा। होम नो वन लिसन टू, यानी जिसकी कोई भी नहीं सुनता था, वाज राइट, वो बिल्कुल सही था। अनवर वाज राइट, ये इसका मेन क्लॉज है। अब होम नो वन वाज लिसन टू, ये इसका एडजेक्टिव क्लॉज है। और होम जो पहले से ब्लैक में अंडरलाइन है, ये इसमें स्टूडेंट क्या है, प्रोनाउन है। So moving towards next exercise, I hope that all of you will be very much acquainted with the pronoun, relative pronoun and adjective clause. So students, this is an other exercise. This is exercise B from lesson number 10. Use the following relative pronouns in sentences. अब इसको भी हमने उसी तरह से स्टूडेंट्स करना है जिस तरह से हमने पिछली एक्सरसाइज की थी। इसमें हमने ये भी देखना है कि प्रोनाउन को हमने इस्तेमाल किया और प्रोनाउन से हमें हमारे पास क्या सेंटेंस बन रहे हैं, वो कौन से क्लॉज बन रहे हैं। अब इसमें मेन क्लॉज स्टूडेंट, इसमें इसको आप ये भी अंडरस्टैंड करना है कि मेन क्लॉज कौन सा है। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, वर्ड क्या है इसमें, हु। दिस इज द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज। अब दिस इज द बॉय, ये इसका मेन क्लॉज है, फर्ज किया। अब हु, ये क्या है इसमें, इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये है प्रोनाउन। अब लेकिन इस पूरे सेंटेंस हु हैज वॉन द प्राइज, जो इनाम जीत चुका था। अब साथ ही एडजेक्टिव क्लॉज भी है, अंडरस्टैंड। बिल्कुल उसी तरह के सेंटेंसेस जिस तरह के पहले आपने देखे, लेकिन प्रैक्टिस से इट विल, दीज सेंटेंसेस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यहाँ भी हु से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द हाउस, यही वो घर है। दिस इज द हाउस, ये घर है। विच आई वांट टू बाय, जिसको मैं खरीदना चाहता था। अब ये यहाँ पे विच जो है प्रोनाउन है, और बाकी विच आई वांट टू बाय ये क्लॉज है। द बुक, ये किताब, द बुक हैज लॉस्ट, इसका मेन क्लॉज जो है वो ये बनता है, ये द बुक हैज लॉस्ट। और दैट वाज बॉट यस्टरडे, जो कल खरीदी गई थी। दैट इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। और was bought yesterday, that was bought yesterday, यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है और ये यहाँ तक that was bought yesterday, ये बनता है एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट देखें, होम, he is the teacher whom we like the most, यही वो टीचर है जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसमें आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि कौन सा इसमें मेन क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, और कौन सा इसमें प्रोनाउन है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, द बॉय हुज लेग वाज ब्रोकन हैज लेफ्ट द स्कूल, वो लड़का जिसकी टांग टूट गई थी वो स्कूल छोड़ गया है। द बॉय हुज यानी ये क्या है, ये प्रोनाउन है। और whose leg was broken has left the school। अब ये स्टूडेंट्स whose leg है was broken, ये यहाँ तक, ये whose leg was broken यहाँ तक ये क्लॉज है और एडजेक्टिव क्लॉज है। तो स्टूडेंट्स this was the exercise for you, and we will move towards next exercise, that is exercise C। एक्सरसाइज में क्या है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड एनसर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें भी हमने वही एक्सरसाइज करनी है। अभी इतनी एक्सरसाइजेस हैं स्टूडेंट्स इसमें आपकी बुक में कि आपको बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है और प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है। अब मैं ये नाम भी बताऊं तो स्टूडेंट्स आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। He tells a tale, वो एक कहानी बताता है, ये इसका मेन क्लॉज है। That sounds untrue। अब इसमें क्या करना है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉजेस। हमने इसको एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन किया, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और लेकिन इसमें
एक और काम करना है, एंड इन सर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन, राइट, दैट इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है पीपल हु ईट्स टू मच डाई अर्ली। पीपल डाई अर्ली इसका मेन क्लॉज है। अब हु इसको ज्वाइन किया है इसने, दो आइडियाज को, दो क्लॉसेस को इसने ज्वाइन किया। वो वर्ड कौन सा है हु इसमें प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज हु से शुरू होता है, हु ईट्स टू मच, सॉरी ये यहाँ तक सिर्फ बनता है, राइट, हु ईट्स टू मच, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट है आई मेट वुमैन हु सन हैड हेल्प्ड मी। अब इसमें आई मेट वुमैन, आई मेट अ वुमैन हु सन हैड हेल्प्ड मी, हुज यहाँ पे क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे इसका जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। जिसके बेटे ने मेरी मदद की थी, आई मैं उस औरत से मिला जिसके बेटे ने मेरी मदद की थी। ही इज़ द मैन, यही वो आदमी है, होम वी ऑल रिस्पेक्ट, जिसकी हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। अब इसमें प्रोनाउन क्या है, इन सर्कल हमने क्या करना है, होम इसमें हमने इसको इन सर्कल करना है, और इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज होम वी ऑल रिस्पेक्ट ये है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क which I must do। अब इसमें which जो है ये इसमें क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, और which I must do इसका एडजेक्टिव क्लॉज है। स्टूडेंट्स हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास डी एक्सरसाइज है। डी एक्सरसाइज में हमने एडजेक्टिव क्लॉज प्लेस करने हैं, और ये ऑलरेडी प्लेस्ड हैं इसमें। तो वेयर इज द बुक दैट यू बॉट येस्टरडे, ये हमने दैट लगाकर, दैट को शुरू में लगाकर हमने सेंटेंस कंप्लीट किया कर दी। वो किताब कहाँ है जो हमने कल खरीदी थी। एनी स्टूडेंट हु कम्स लेट विल बी पनिश्ड, वो स्टूडेंट जो लेट आता है वो उसको सजा दी जाएगी। ये भी हमने उसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया, और इसको सेंटेंसेस को हमने एडजेक्टिव क्लॉज से कंप्लीट किया। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है द अम्ब्रेला, ये छतरी, दैट ही इज लेइंग ऑन द टेबल इज माइन, जो ये छतरी जो टेबल पर पड़ी है ये मेरी है। नंबर 4, दैट इज द गर्ल हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, यही वो लड़की है जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। नेक्स्ट आगे फिफ्थ सेंटेंस है वेयर इज द मैन हु आई वांट टू सी, जिसको मैं मिलना चाहता था। अब इसमें सारे हु, दैट, हु और दैट दो वर्ड हैं इसमें, जैसे सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो अंडरलाइन किए गए हैं ये एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू will have understood relative pronoun and adjective clauses. So moving towards next exercise, students, in this is topic is a adverb clause. This is unit number 11, and the exercise in grammar portion we have done exercise A and exercise B. We have done this already, and we will start with exercise C. Exercise C is underline adverb clauses and encircle subordinate conjunctions. अब जितने भी स्टूडेंट्स ये एडवर्ब क्लॉजेस हैं ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं, मैक्सिमम सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से इनको हम करते हैं। वो भी शुरू में आते हैं, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। ये कभी सेंटेंस के शुरू में आते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉजेस, कभी ये मिड में होते हैं, और कभी ये एंड पे होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं, कभी सब्जेक्ट होते हैं। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस में देखें, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। अब इसमें सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है और एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। हम देखें स्टूडेंट्स अगर इसको, तो ये इसका एडवर्ब क्लॉज है।
तो इसका कंजंक्शन कौन सा है, वेयर एवर यू लाइक, ये इसका सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, या इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट कंजंक्शन या सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। नेक्स्ट है ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, ये इसका मेन क्लॉज है, यू मे सिट फर्स्ट ये मेन क्लॉज है, ही विल पास मेन क्लॉज है, इफ ही वर्क्स हार्ड ये इसका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, इसको हम इफ को इनसर्कल कर देते हैं, ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सेंटेंसेस को जोड़ता है, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी शैल वेट हेयर अंटिल यू कम्स, अंटिल इसमें सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, राइट, अंटिल यू कम्स ये इसका सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट है आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज, बिकॉज इसमें सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि ये बहुत महंगा था या कीमती था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डू इट बिफोर यू फॉरगेट, इसको जल्दी कर लें पेशतर इसके कि आप इसको भूल जाएं, और इसमें बिफोर जो है ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज ऑफ कंजंक्शन। Okay students, we will move towards next exercise, that is exercise D. In exercise D students इसमें क्या करना था, सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लॉजेस, इसमें आपने एडवर्ब क्लॉजेस लगाने थे। एडवर्ब क्लॉजेस कैसे बनते हैं, इसको सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर भी बनते हैं, और ये वैसे आपके सामने आप देखेंगे कि ये कैसे हैं। Nobody likes him because he is naughty, कोई भी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो शरारती है। अब ये इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज लगा के, सबॉर्डिनेट क्लॉज है ये, और बिकॉज लगा के इसको सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगा के इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज बना दिया, ये एडवर्ब क्लॉज है। शी सिंग्स एग्जैक्टली लाइक नूरजहां, अब इसमें सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगाना ज़रूरी है, एज लाइक नूरजहां, ये लाइक इसमें जो है ये भी वर्ड एज की तरह है। अगर हम सेंटेंस को इस तरह करते, शी सिंग्स एग्जैक्टली एज नूरजहां, एज लाइक नूरजहां या एज नूरजहां सिंग्स, तो फिर भी ये सेंटेंस ठीक था। नेक्स्ट आगे है आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, सबॉर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट है इट शैल रिमेन the strike for 2 days, it shall remain the strike for 2 days, ये इसका subordinate clause है। he shall pass the exams, I ये पहले आ गया as a subject आ गया, I spoke to his brother, या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, I spoke to his brother, he shall pass the exam, ये इसमें adverb clause है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज ई की बजाय हम करेंगे एक्सरसाइज एफ। एफ क्या है, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डिपेंडेंट क्लॉज इज एंड व्हाट इंडिपेंडेंट क्लॉज इज। इन द सेंटेंसेस यू कैन सी, सेंटेंसेस को बस सामने सामने लिखे हुए हैं, इनमें दरमियान में एक इनको कॉलम बना के इनको सेपरेट कर दिया गया है, और आप इनको इजीली सेंटेंसेस को यहाँ से पढ़ें तो यहाँ तक ये सेंटेंस एंड होता है। इसके जो डिपेंडेंट क्लासेस हैं वो बाद में लिखे गए हैं, और ये जो इंडिपेंडेंट हैं वो पहले लिखे गए हैं। आसिफ प्लेज हॉकी एज ही enjoys it. Shazia could not catch the bus because she was late. Ali could not finish the mathematics test on time, although he knew all the sums. Arifa quickly ate her lunch as she was very hungry. Haris is back from work, so he must take rest. You must work hard if you want to
succeed in life. तो स्टूडेंट्स ये आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपके सामने हैं, आपके लिए ये आज का ही इतना सा ही होमवर्क था। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज ई है। ई एक्सरसाइज आपको आज के काम के लिए दी गई है। ये इसमें वर्ड्स हैं सिंस, अनलेस, दो, व्हाइल, एज, व्हेन। तो स्टूडेंट्स आप इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है और ये जुमलों में इस्तेमाल करके ये एक्सरसाइज आप मुझे हमारी क्लास 9 के इंग्लिश पेज पे हमें ये सेंड करेंगे और मैं आपकी इसे अटेंडेंस लूँगा। तो स्टूडेंट्स, today's lesson is over and thank you very much. I will see you tomorrow with another important lesson. So thank you very much for today. I will see you tomorrow.